کے فسادات مودی حکومت کی راست نگرانی میں ہوئے تھے۔ کانگریس نائب صدر راہل گاندھی نے بی جے پی کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار نریندر مودی پر راست حملے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ راہل نے گجرات 2002 فسادات کے لیے مودی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ 1984 اور 2002 کے فسادات کا موازنہ کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ 1984 میں کانگریس حکومت نے سکھ مخالف فسادات کو روکنے کی کوشش کی تھی، تاہم 2002 میں مودی حکومت کی نگرانی میں فسادات ہوئے تھے۔ ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کانگریس نائب صدر نے کہا کہ وہ مودی سے خوفزدہ نہیں ہے اور کانگریس لوک سبھا انتخابات میں دوبارہ کامیابی حاصل کرے گی۔ مختلف عدالتوں کی جانب سے مودی کو کلین چٹ دیے جانے کے معاملے پر راہل گاندھی نے کہا کہ مودی وزیر اعلیٰ تھے اور حکومت نے فسادات کو مزید بھڑکایا۔ راہل نے کہا کہ یہ بات صرف وہ نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ فسادات میں مودی حکومت ملوث تھی۔ انٹرویو کے دوران راہل نے کہا کہ عینی شاہدین اور میڈیا کے نمائندوں نے انہیں بتایا کہ مودی انتظامیہ اقلیتوں پر حملے میں سرگرمی سے ملوث تھا۔ دوسری جانب بی جے پی نے راہل گاندھی کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ بی جے پی ترجمان روی شنکر پرساد کا کہنا ہے کہ عدالتیں مودی کو کلین چٹ دے چکی ہیں، ایسے میں راہل کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ اور جو شریمان راہل گاندھی نے گجرات کی سرکار کے خلاف دنگوں کے بارے میں کہا ہے وہ بالکل بے بنیاد، دربھاگیہ پورن اور بھرسنا یوگیہ ہے۔ سپریم کورٹ کی ایس آئی ٹی نے اسپشٹ روپ سے پورے معاملے کی جانچ کرنے کے بعد پایا کہ نریندر مودی کی سرکار کی کوئی بھومکا نہیں ہے۔ رائے دربھاگیہ پورن تھے، وہاں ٹرائل ہو رہا ہے۔ وہی سکھوں کے پورے نرسنہار کے بارے میں 84 پر انہوں نے اپنی پارٹی کے نیتا جن کے اوپر ٹرائل چل رہا ہے، اپیل پینڈنگ ہے، اس پر کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا اور سچائی سے دور بھاگنے کی کوشش کی۔ انٹرویو کے دوران راہل گاندھی نے اعتراف کیا کہ 1984 کے سکھ مخالف فسادات میں کانگریس کے کچھ ارکان ملوث تھے، تاہم راہل نے 1984 کے سکھ فسادات پر معذرت خواہی کرنے سے گریز کیا۔ انٹرویو کے دوران راہل نے اس سوال کا جواب دینے سے گریز کیا کہ سخت مقابلہ ہونے کی وجہ سے وہ پارٹی کی وزارت عظمیٰ کا امیدوار بننے سے گریز کر رہے ہیں۔ جواب میں راہل نے کہا کہ انتخابات سے قبل وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے نام کا اعلان کرنا اور منتخب ارکان پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر وزیر اعظم کے نام کے اعلان کے بارے میں آئین میں نہیں لکھا گیا ہے۔ بیورو رپورٹ، ٹی ٹی وی نیوز۔ کانگریس نے راجیہ سبھا کی 5 نشستوں کے لیے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ ان ناموں میں حیرت انگیز طور پر پارٹی جنرل سیکرٹری دگ وجے سنگھ کا نام شامل ہے۔ دہلی کی سابق وزیر اعلیٰ شیلا دیکشت کے نام پر ابھی تجسس برقرار ہے۔ مدھیہ پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اور کانگریس جنرل سیکرٹری دگ وجے سنگھ ایک بار پھر سرگرم سیاست میں واپس ہو رہے ہیں۔ کانگریس نے دگ وجے سنگھ کو راجیہ سبھا کے رکنیت کے لیے نامزد کر کے سب کو چونکا دیا ہے۔ قابل غور بات ہے کہ کچھ دن قبل ہی دگ وجے نے لوک سبھا انتخابات میں حصہ لینے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ 2003 میں مدھیہ پردیش اسمبلی انتخابات میں شکست کے بعد دگ وجے سنگھ نے سرگرم سیاست سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا۔ دگ وجے سنگھ مدھیہ پردیش سے ہی پرچہ نامزدگی داخل کریں گے۔ جی ہم تو سب کاریہ ہیں کانگریس پریزیڈنٹ کے اور ماننی وائس پریزیڈنٹ کے، تو جو آدیش ہوگا سو کریں گے۔ کانگریس نے ایک اور سینئر لیڈر مدھوسودن مستری کو بھی گجرات سے نامزد کیا ہے۔ مستری نے بھی اپنے آبائی حلقے بنس کنٹھا سے لوک سبھا انتخابات میں حصہ لینے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ مستری کو کانگریس میں پالیسی ساز لیڈر کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ بہت خوشی ہے اور میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے اور کانگریس پارٹی کے پریزیڈنٹ سونیا جی اور وائس پریزیڈنٹ راہل جی ان کا شکر گزار کرتا ہوں، انہوں نے مجھ پر ٹرسٹ رکھا۔ آندھرا پردیش کانگریس نے 3 موجودہ ارکان کو ہی دوبارہ نامزد کیا ہے۔ موجودہ رکن محمد علی خان، ٹی سبی رامی ریڈی اور کے وی پی رام چندر راؤ کو کانگریس نے دوبارہ امیدوار بنایا ہے۔ کے وی پی رام چندر راؤ آندھرا پردیش کے آجہانی وزیر اعلیٰ ڈاکٹر وائی ایس راجشیکھر ریڈی کے دستراز تصور کیے جاتے تھے۔ وائی ایس آر کے انتقال کے بعد کے وی پی نے کانگریس اور وائی ایس جگن موہن ریڈی کے درمیان صلح کرانے کی کافی کوشش کی تھی۔ مانا جا رہا ہے کہ آندھرا پردیش میں اقلیتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے کانگریس نے محمد علی خان کو دوبارہ نامزد کیا ہے۔
दूसरी जानिब शीला दीक्षित की उम्मीदवारी पर अभी भी तजब्जुब बरकरार है। माना जा रहा था कि शीला दीक्षित को भी कांग्रेस राज्यसभा में मौका देगी, ताहम कांग्रेस आला कमान की जानिब से इस जिम्न में कोई इशारे नहीं मिल रहे हैं। इतवार को भी कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था, जिनमें मुरली देवड़ा, मोतीलाल वोहरा, रंजीब बिस्वाल, हुसैन दलवाई और हाजी अब्दुलसलाम का नाम शामिल है। मंगल को पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख है। 7 फरवरी को राज्यसभा के लिए इंतखाबात होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। दिल्ली काबीना आज जन लोकपाल बिल को मंजूर कर सकती है। बताया जाता है कि चीफ सेक्रेटरी जन लोकपाल बिल को हतमी शक्ल देने में लगे हुए हैं। जराये के मुताबिक उत्तराखंड लोकायुक्त बिल की तर्ज पर जन लोकपाल बिल होगा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल जन लोकपाल को जल्द से जल्द मुतारफ कराने में संजीदा नजर आ रहे हैं। केजरीवाल ने फरवरी के पहले हफ्ते में रामलीला मैदान में असेंबली का इजलास तलब करके जन लोकपाल को मंजूर कराने का आवाम से वादा किया है। दिल्ली हुकूमत की आज होने वाली काबीना की मीटिंग में जन लोकपाल बिल को मंजूर किया जा सकता है। जराये के मुताबिक दिल्ली हुकूमत का जन लोकपाल बिल उत्तराखंड के मंजूर शुदा लोकायुक्त बिल के खतूत पर होगा, तहम इनमें कुछ तब्दीलियां की गई हैं। जराये के मुताबिक जन लोकपाल बिल के दायरे में वज़ीर आला को भी शामिल किया गया है। बताया जाता है कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी जन लोकपाल बिल के मसवदे को हतमी शक्ल देने में मसरूफ हैं। बिल को काबीना में पेश करने से काबिल कल वज़ीर आला केजरीवाल ने अपने बाएतमाद साथियों के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग में काबीनी वजीर और आला सरकारी ओहदेदारों के अलावा सीनियर एडवोकेट्स प्रशांत भूषण, राहुल मेहरा ने शिरकत की। 2 घंटों तक चली मीटिंग में बिल के अहम नुकात पर तबादला ख्याल किया गया। दिल्ली हुकूमत ने जन लोकपाल बिल को तैयार करने के लिए चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में कमेटी तश्कील दी है, जिसमें शहरी तरक्यात, कानून और महकमे खजाना के सेक्रेटरियों के अलावा कानूनी माहिरीन को शामिल किया गया है। वाज़ेह है कि 28 दिसंबर को ओहदा संभालने के साथ ही केजरीवाल ने जन लोकपाल बिल रामलीला मैदान में पास कराने का आवाम से वादा किया था। रामलीला मैदान में असेंबली इजलास के इनेकाद पर पुलिस के एतराज पर पार्टी का कहना है कि बिल की काबीना से मंजूरी के बाद पुलिस के इस एतराज पर गौर किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की सेहत नासाज चल रही है। डॉक्टरों के मुताबिक वज़ीर आला की बढ़ी हुई ब्लड शुगर को काबू में करने के लिए इंसुलिन तजवीज की गई है। वाज़ेह के अरविंद केजरीवाल पिछले दिनों ब्रोंचाइटिस होने की वजह से स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे थे। गुज़श्ता हफ्ते मुजाहरे के दौरान रेल भवन के बाहर खुले में सोने से अरविंद केजरीवाल बुखार में मुब्तला हो गए थे। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि 3 हफ्ते में ही पार्टी ने 1 करोड़ से ज्यादा मेंबर बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। पार्टी लीडर गोपाल राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोग मोबाइल SMS के जरिए मेंबरशिप का इंदराज करा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुअत्तलशुदा MLA विनोद कुमार बिन्नी ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एहतजाज को खत्म कर दिया है। बिन्नी का कहना है कि समाजी रहनुमा अन्ना हजारे ने उन्हें इंतजार करने की हिदायत दी है। दूसरी जानिब दिल्ली बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर हर्षवर्धन ने केजरीवाल से मुलाकात की और एक मकतूब हवाले किया। दिल्ली के वजीर कानून सोमनाथ भारती के खिलाफ एहतजाज जोर पकड़ रहा है। बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी के बागी लीडर विनोद कुमार बिन्नी भी भारती को हटाने का पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं। भारती के इस्तीफे के मुतालबे के ज़िम्न में विनोद कुमार बिन्नी ने पीर की सुबह लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात की और जंतर मंतर पर केजरीवाल हुकूमत के खिलाफ भूख हड़ताल भी शुरू की। फिर कुछ ही घंटों बाद बिन्नी ने भूख हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। बिन्नी का कहना है कि समाजी रहनुमा अन्ना हजारे ने उन्हें मजीद कुछ वक्त इंतजार करने की हिदायत दी है। बिन्नी ने कहा कि वो दिल्ली हुकूमत को 10 दिनों की मोहलत दे रहे हैं और अगर 10 दिनों बाद भी केजरीवाल हुकूमत ने सोमनाथ भारती को नहीं हटाया तो वो आगे की हिकमती अमली तय करेंगे। होगा। मुझे अन्ना जी ने एक बात कही थी कि ये 2 दिन 4 दिन के आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला, भूख मरने से कुछ नहीं वाला। हमने बहुत भूखा मर के देखा है और
उन्होंने एक बात भी कही थी कि आपको इस पर पुनः विचार करना चाहिए। अनशन की राजनीति, अनशन वाली प्रक्रिया इस देश में फ्लॉप हो चुकी है। आपको पूरा संगठन खड़ा होकर इनका मुकाबला करना होगा, अपनी नीतियों को क्लियर करना होगा, इन पार्टी की नीतियों को उजागर करने के लिए आपको काम करना होगा। इस जगह बैठ के साथ ये काम नहीं कर पाओगे आपको तमाम पूरे देश में काम करना चाहिए। दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी ने बिन्नी की 10 दिनों की मोहलत को अहमियत देने से इनकार किया है। पार्टी के सीनियर लीडर गोपाल राय का कहना है कि बिन्नी को अब अपने बारे में सोचना चाहिए। ऐसा है कि पार्टी से बाहर है, आप अपने जिंदगी के बारे में सोचिए और अपने काम के बारे में सोचिए, ज्यादा अच्छा हो। इस दौरान दिल्ली बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर हर्षवर्धन ने वजीर आला केजरीवाल से मुलाकात की और सोमनाथ भारती को हटाने का मुतालबा करते हुए एक मकतूब हवाले किया। हर्षवर्धन के साथ पार्टी के एमएलएज भी मौजूद थे। बीजेपी एमएलएज ने भारती को हटाने का मुतालबा करते हुए पुरजोर नारे लगाए। मैंने अपनी बात कही है, उन्होंने कहा देखेंगे, उन्होंने मेरा पत्र ले लिया। हमने ये कहा है कि जब तक बर्खास्तगी नहीं होगी हमारा आंदोलन लगातार चलेगा और हम अलग अलग तरीके से आंदोलन करेंगे, भारत के राष्ट्रपति तक जाकर अपनी गुहार करेंगे। उधर सोमनाथ भारती इस्तीफे के ताल्लुक से या अपनी हिकमत अमली के ताल्लुक से कुछ भी बयान देने से गुरेज कर रहे हैं। मीडिया नुमाइंदों के लाख सवालात के बावजूद भी सोमनाथ वक्त आने पर जवाब देने की बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत को दी गई हिमायत वापस लेने की मामले में कोई जल्दबाजी से काम नहीं लेगी। कांग्रेस तर्जुमान मुकुल वासनिक ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। Be keeping a complete watch on all the developments. We have extended our support. It is not that today we have extended our support and tomorrow just we are withdrawing. Those type of things, we don't decide such matters in such a light manner. So all these things we will be watching over a period of time. ईटीवी के बैनर तले 24 घंटों पर मुश्तमिल कन्नड़ा न्यूज चैनल की तैयारियों का ईटीवी उर्दू हिंदी चैनलों के हेड जगदीश चंद्र ने बेंगलुरु में जायजा लिया। इस दौरान जनरल मैनेजर ऑपरेशन सुब्बा नायडू और ईटीवी के ग्रुप एडिटर राजेश रैना भी उनके साथ रहे। इस मौके पर ईटीवी उर्दू और हिंदी चैनलों के हेड जगदीश चंद्र ने कहा कि कर्नाटक में ईटीवी की मकबूलियत को देखते हुए 24 घंटों पर मुश्तमिल न्यूज चैनल को मुतारुफ कराया जा रहा है। जगदीश चंद्र ने बताया कि ईटीवी नेटवर्क के इस इक़दाम पर न सिर्फ नाजरीन में बल्कि सहाफती हलकों में भी इश्तियाक देखा जा रहा है। is a very popular channel in Karnataka for the last 13 years. But at the moment, we are running only 2 news bulletins and entire remaining program goes to entertainment. So now, keeping in view the public demand, we are going to start a new 24-hour regional news channel in Kannada language, probably from 15th March. This will provide the latest update on all the events, on all the movements in the state. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। अपनाइए मिलाप स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है। देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं। युवा हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिलीव्स हैं, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। ईटीवी इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आंध्र प्रदेश की तकसीम के ताल्लुक से सदर जमहूरिया के रवाना करदा बिल को वजीर आला किरण कुमार रेड्डी वापस रवाना करना चाहते हैं।
بتایا جاتا ہے کہ بل کو واپس کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے اس اقدام کا تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے ریاستی وزراء اور ایم ایل ایز مخالفت کر رہے ہیں۔ دوسری جانب مرکز کی جانب سے تلنگانہ معاملے پر قائم وزراء گروپ نے وزیر اعلیٰ کے اس اقدام پر ناخوشی کا اظہار کیا ہے۔ ہم جنس پرستی کو جرم قرار دیے گئے سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی عرضی پر سپریم کورٹ میں آج سنوائی ہوگی۔ مرکزی حکومت اور کچھ تنظیموں نے سپریم کورٹ سے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی درخواست کرتے ہوئے عرضداشت داخل کی ہے۔ سپریم کورٹ کے جج ایچ ایل دتو اور ایس جے مکھوپادھیائے نے پر مشتمل بینچ اس بات پر غور کرے گی کہ ہم جنسی کے خلاف حالیہ فیصلے کے خلاف نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ واضح ہے کہ سپریم کورٹ نے 11 دسمبر کو دہلی ہائی کورٹ کے فیصلے کو منسوخ کرتے ہوئے ہم جنس پرستی کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ مہاراشٹر نونرمان سینا کے کارکنوں نے تھانے، ضلع اور دیگر علاقوں میں ٹول بوتھوں پر توڑ پھوڑ مچائی۔ ایم این ایس کارکنوں نے مہاراشٹر کے 8 شہروں میں یہ ہنگامہ آرائی کی۔ اس سلسلے میں پولیس نے ایم این ایس کے ایک رکن اسمبلی اور 71 کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ टोलवरती तुम्ही टोल भरायचा नाही। आले तर दुर्गम करा। जोपर्यंत हा टोल कशासाठी वसूल होतोय हे जोपर्यंत तुम्ही सांगत नाही तोपर्यंत कोणीही टोल भरायचा नाही। रस्त्यात गाड्या थांबू दे, ट्रॅफिक जाम होऊ दे, जे काय व्हायचं ते होऊ दे। एमएनएस सरबराह राज ठाकरे का यही वो फरमान था जिस पर अमल करते हुए पार्टी कारकुनों और हामियों ने मुलुंड, थाने, दहिसर, कल्याण और दीगर इलाकों में टोल बूथों को निशाना बनाकर हंगामा बर्पा कर दिया। राज ठाकरे ने इतवार की शाम नवी मुंबई में एक तकरीब के दौरान एमएनएस वर्करों से टोल टैक्स अदा न करने की हिदायत दी थी। राज ठाकरे की तकरीर के चंद घंटे बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कारकुनों ने हंगामा आराई शुरू करते हुए टोल बूथों को नुकसान पहुंचाया। कल्याण टाउनशिप में रुकने असेंबली प्रकाश बोहर की क़यादत में एमएनएस के हामियों ने मुताद्दिद टोल बूथों पर हमले किए। पुलिस ने टोल बूथों पर हमले के मामले में कार्रवाई करते हुए एमएनएस के एक रुकने असेंबली परवीन दारेकर के अलावा कम से कम 71 पार्टी वर्करों को गिरफ्तार कर लिया। इससे कबल महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने टोल बूथों पर हमले के खिलाफ इंतबाह दिया था। अजीत पवार ने कहा था कि टोल बूथों पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह के इतवार को महाराष्ट्र के वज़ीर आला पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि अगर टोल टैक्स की वसूली बंद कर दी गई तो नई सड़कों की तामीर का काम रुक जाएगा। वज़ीर आला के बयान के एक रोज बाद ही एमएनएस कारकुनों ने ये कार्रवाई की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बीजेपी की सीनियर लीडर उमा भारती ने राज ठाकरे को तनकीद का निशाना बनाया है। उमा भारती का कहना है कि किसी भी इख्तलाफी मामले पर तशद्दुद की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन ये अराजकता का निर्माण करना ये लोकतंत्र में सही नहीं है, गलत है। और मुझे लग रहा है कि मैं तो पहले भी ये बात कहती रही हूं कि वो अपनी शक्ति का और अपने समर्थन का दुरुपयोग करते हैं। तो दूसरा, वहां पर जो सरकार है वो भी उनके दबाव में रहती है और उसी दबाव का परिणाम रहता है कि पुलिस भी वहां ठीक से एक्शन नहीं लेती और ये अच्छी बात नहीं है। अराजकता को एक प्रकार से सरकारी संरक्षण में ही बढ़ावा मिलता है। राजस्थान के बांसवाड़ा में 12 साल की एक लड़के को जन्म दिया है। ये लड़की गूंगी व बहरी है और 5वीं क्लास की तालिबा है। जिला इंतजामिया ने इस मामले में तहकीकात के अहकाम दिए हैं। समझा जा रहा है कि इस बालिग लड़की की इस्मत रेजी की गई है। मुतासरा नौजायदा को अपने साथ रखने से इनकार करने पर नौजायदा जिला इंतजामिया ने यतीम खाने को दे दिया है। मुख्य बधिर विद्यालय के छात्रावास में रहती थी। जानकारी की तो उसकी डेट ऑफ बर्थ 2003 यानी वो 11 वर्ष की है। जिसके आधार पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके साथ बलात्कार करके और गर्भवती किया जाना, इस संबंध में अभियोग दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है। शीघ्र खुलासा किया जाएगा और जो भी मुलजिम है उसे गिरफ्तार किया जाएगा।
स्कूल में तो सर मुझे शाम को पेट दर्द की सूचना चौकीदार ने दी। मैं वहाँ गई तो वहाँ जाके देखा कि लड़की की ब्लीडिंग चालू हो रहा और प्रेगनेंसी का देखा मुझे, तो 108 को फोन किया और वो आए और डिलीवरी क्या वहीं पे हुई? हाँ, डिलीवरी वहीं पे हो गई सर। स्कूल में हुई क्या? हाँ, स्कूल में ही हो गई थी। झारखंड के गिरिडीह में नक्सलियों ने सिलसिलेवार जमीनी सुरंग धमाके किए, जिसके नतीजे में कम से कम 2 पुलिस एहलकार हलाक और दीगर 14 जख्मी हो गए। बताया जाता है कि धमाका गिरिडीह जिले के दुलकट्टा इलाके के करीब हुए। हुक्काम का कहना है कि पुलिस पार्टी 4 मुगविया सरकारी मुलाजमीन को छुड़ाने के लिए तलाशी मुहिम में मसरूफ थी कि नक्सलियों ने जमीनी सुरंग धमाके किए। उधर नक्सलियों ने 4 मुगविया सरकारी मुलाजमीन को रिहा कर दिया है। इन सरकारी मुलाजमीन को सनीचर को गिरिडीह के नवकन्या गांव से अगवा किया गया था। गिरिडीह के एसपी क्रांति कुमार ने सरकारी मुलाजमीन की रिहाई की तस्दीक की है। रब्बुल आलमीन की आखिरी किताब कुरान मजीद के हर फन और हर मौजू पर बेशुमार तसनीफात और तालिफात का जखीरा मौजूद है। ताहम मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी ऑफ दी होली कुरान अपनी नौइयत की मुनफरिद और मुमताज कुरानी डिक्शनरी है। ये किस चीज में इस्तेमाल हुआ? आगे बढ़ते हैं। मरकजी वजीर खजाना पी चिदम्बरम की क़यादत में 10 रुकनी वक्त सऊदी अरबिया में 2 रोजा दौरे पर हैं, जहां पी चिदम्बरम अपने हमनसब तौफीक कुर्राबिया से मुलाकात करेंगे। सऊदी अरबिया और हिंदुस्तान के दरमियान तिजारत को फरोग देने के अलावा बाहमी मफाद, मईशत, तालीम पर भी तबादले ख्याल करेंगे। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस मुलाकात से दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी और तिजारत को फरोग मिलेगा। यूक्रेन में इमरजेंसी नाफिज करने के हुक्काम की धमकी के बावजूद सदर विक्टर यानुकोविच के खिलाफ दारुल-हुकूमत कीवी और मुल्क के कई दूसरे इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे बदस्तूर जारी हैं। बताया जा रहा है कि सदर यानुकोविच ने बहरान खत्म करने की कोशिश के तौर पर पार्लियामेंट का एक गैर मामूली इजलास भी तलब किया है। ताहम मुखालिफिन को इससे कोई खातिर ख्वाह नतीजे की उम्मीद नहीं है और वो सदर के इस्तीफे के मुतालबे पर कायम है। फिलिपाइन की अफवाज ने सख्त गिर मुस्लिम बागी ग्रुप पर हमले किए हैं। 2 दिन कबल ही फिलिपाइन के एक अहम बागी मुस्लिम ग्रुप ने मिलिटेंट कार्रवाइयां रोकने के लिए हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात किए हैं। भारी असलहे से लैस फौज ने बंगसमुरो इस्लामिक फ्रीडम फाइटर्स नामी बागी ग्रुप के गोरिल्लाज के खिलाफ मुल्क के जनूबी जज़ायर में कार्रवाई की है। लड़ाई की वजह से कई आम शहरियों को घर बार छोड़ना पड़ा है। 250 से 400 मिलिटेंट मुबैना तौर पर अमन अमल की शुरुआत के खिलाफ हैं। इस्राईली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू का ख्याल है कि मुस्तक़बिल के फिलिस्तीन में तमाम यहूदी आबादकारों को उनके मकानात में ही रिहाइश पजीर रहने का हक दिया जाएगा। बेंयामिन नेतन्याहू के दफ्तर में बरसर खिदमत एक अफसर के हवाले से ये खबर आई है। दाऊस में भी मीडिया से बात करते हुए नेतन्याहू ने कहा था कि वो नस्ली सफाई वाले फिलिस्तीन का क़याम नहीं चाहते। मकबूजा फिलिस्तीन में रिहाइश पजीर हो जाने वाले यहूदियों को हटाने का मामला मशरिक़ वस्ता अमन मुज़ाकरात का अहम तनाज़ा बना हुआ है। फिलिस्तीनी मुज़ाकरातकार चाहते हैं कि मुस्तक़बिल के फिलिस्तीन में यहूदी आबादकारों को नहीं रहने दिया जाए। अब अगर नेतन्याहू यहूदी आबादकारों को उनके मकानात में रहने देने का हक देने की शर्त रखेंगे तो अमन मुज़ाकरात से कोई नतीजा बरामद होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी तक अमन मुज़ाकरात में कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में नेतन्याहू के इस बयान की 4 जानिब से मजम्मत की जा रही है। फिलिस्तीनी मुज़ाकरातकार साहिब बरकात ने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है कि वो फिलिस्तीन का क़याम नहीं चाहते। साहिब बरकात ने कहा कि जो कोई ये चाहता है कि यहूदी आबादकार अपने मकानात में ही रहें, वो असल में फिलिस्तीन का क़याम नहीं चाहता है।
کل عراق کے مختلف مقامات پر خودکش دیگر پرتشدد حملوں میں کم از کم 8 افراد مارے گئے. ہلاک شدگان میں 4 فوجی بھی شامل ہیں. بغداد کے مغرب میں ایک خودکش حملہ آور نے دھماکہ کرتے ہوئے 4 لوگوں کو ہلاک کر دیا. فلوجہ شہر کے قریب ایک فوجی چھاونی میں گولہ بارود سے بھری کار گھسانے کے واقعے میں 4 فوجی ہلاک اور 21 زخمی ہو گئے. بغداد کے شمال میں ایک بندوق بردار نے ایک دکان کے مالک اور اس کے رشتہ دار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا. بغداد کے لطیفیہ علاقے میں بم دھماکے کے نتیجے میں 2 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے. عراق کے انبار صوبے میں ملیٹنٹوں اور عراقی افواج کے درمیان لڑائی ہوئی ہے. ملیٹنٹوں نے چند فوجیوں کو یرغمال بنا لیا. ملیٹنٹوں نے لڑائی جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا. پاکستانی اداکارہ وینا ملک نے اعلان کیا ہے کہ وہ کمرشل فلمیں اور شوبز چھوڑ رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ اب پاکستانی اور ہندوستانی فلموں کے علاوہ کسی بھی سیریل میں کام نہیں کرے گی. ان کا کہنا ہے کہ وہ اب صرف ایسے پروجیکٹس کریں گی جس میں مذہبی یا سماجی پیامات دیے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ عالم دین مولانا طارق جمیل نے ان کی زندگی تبدیل کر دی ہے. یاد رہے کہ وینا ملک نے بالی ووڈ کے چند پروڈیوسرز کے ساتھ کام کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کی تھی. تاہم اب انہوں نے سعودی عرب میں ایک پاکستانی صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اب وہ صرف عوامی فلاح کے پروجیکٹس کریں گی. وینا ملک عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب میں تھیں. ٹیم انڈیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہیملٹن میں سیریز کا 4تھا ون ڈے میچ کھیلا جا رہا ہے. ٹیم انڈیا نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا ہے. ٹیم انڈیا کو اس فیصلے سے نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے. ٹیم انڈیا کے 2 بلے باز سستے میں ہی پویلین لوٹ چکے ہیں. وراٹ کوہلی نے ایک بار پھر مایوس کیا ہے. ٹیم انڈیا کے لیے سیریز میں برقراری کے لیے آج کا میچ جیتنا کافی اہم ہے. 5 میچوں کی سیریز میں نیوزی لینڈ ابتدائی 2 میچ جیت چکی ہے جبکہ تیسرا میچ ڈرا ہوا. ٹیم انڈیا اگر آج کا میچ ہار جاتی ہے تو سیریز ہار جائے گی. دوسری جانب پچ میں نمی کے آثار نظر آ رہے ہیں جس سے کہ اسپنر آر اشون کو فائدہ ملنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. افریقی ملک نائجیریا کے شمال مشرقی علاقے میدوگری میں انتہا پسندوں کے حملے میں 99 افراد ہلاک اور سینکڑوں مکانات تباہ ہوئے. نائجیریا کے سیکیورٹی ذرائع کے مطابق انتہا پسندوں نے پرہجوم بازار میں کئی مقامات پر دھماکو مادے فٹ کیے تھے. سیکیورٹی افسران نے اس حملے کے لیے مسلم انتہا پسند بوکو حرم کو ذمہ دار ٹھہرایا. قابل غور ہے کہ گزشتہ مئی سے نائجیریا کے شمال مشرقی علاقے میں فوج کی نگرانی میں ایمرجنسی نافذ ہے. ای ٹی وی انڈیا میں فی الحال اتنا ہی. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دیکھیے ای ٹی وی اردو کشمیر. آداب. ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام ناظرین آداب. ای ٹی وی اردو کشمیر میں آپ کا خیر مقدم ہے. پہلے نظر سرخیوں پر. پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں وادی کے رغمال بنائے گئے ٹرک ڈرائیوروں کو فور رہا کیا جائے. متاثرہ خاندانوں کا مطالبہ.